Good morning, children. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Today I will teach you the chapter in English literature, chapter number 14, True Devotion. I have already explained you the chapter True Devotion. I will just bring you the summary of the chapter of True Devotion and what is there in the chapter. In this chapter, it is said that Lord Narad ji think himself to be the greatest devotee of Lord Vishnu. He thought that he was the greatest devotee of Lord Vishnu, and there is no other person who is greater than him and who considers himself to be a great devotee of Lord Vishnu. But when Lord Vishnu said to him that there is also one more devotee of क्या बोलते हैं there is one more person who is a greater devotee than Narad ji, he was astonished to listen all that. How can it be possible that there is also a person who is greater devotee than him, as he always used to chant his names? But he said that there is greater a person on earth. His name is Govinda, and he should go there and see that person and met him and see that he is a very much great devotee of Lord Vishnu. Now I will read some part of the stories. The said Narad is known as the messenger of gods. He is known as the messenger of gods. He also formed as one of the greatest devotees of Lord Vishnu. He is believed to carry a veena. एक हाथ में उनकी वीणा होती थी and roam 3 words और 3 words को roam करते थे, chanting the name of Lord Vishnu और Lord Vishnu का नाम लेते थे. Whenever he speaks, the first word, सबसे पहले वर्ड जो वो बोलते थे वो नारायण नारायण बोलते थे. One day Narad came to वैकुंठ. एक दिन नारद जी वैकुंठ में आए. The abode of Lord Vishnu, जहाँ पे विष्णु जी का घर था. And usual he carried the veena in one hand. जैसे कि वो एक हाथ में वीणा लेके बैठे रहते थे, वैसे ही वो बैठे हुए थे. And he chanted the words नारायण नारायण were on his lips. वो उनके lips पे जो word थे वो नारायण नारायण थे. Lord Vishnu welcomed him and bade him be seated. Lord Vishnu इनको वेलकम किया और उनसे कहा कि बैठ जाइए. Then he asked Narad, you have been all over the world. Have you noticed anything special anywhere? उन्होंने पूछा कि आप नारद जी हर जगह जाते हैं, हर दुनिया में जाते हैं, क्या आपने कुछ स्पेशल नोट किया कहीं पे? Full of importance at being asked, Narad sat up. नारद जी जो से वो खड़े हो गए. My lord, how can I tell you what I have seen? उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या देखा? It is indeed shocking. ये बहुत shocking है. All over the world, people are forgetting the meaning of true devotion. दुनिया भर में जो लोग हैं वो true devotion का जो meaning है वो भूलते जा रहे हैं कि सच्ची पूजा, सच्ची श्रद्धा क्या होती है. They are getting more and more absorbed in the pleasures of money can buy. वो लोग केवल पैसे से जो सुख खरीदा जा सकता है उसी में ही absorb होते चले जा रहे हैं. Nobody has the time to remember you. और किसी का भी मन नहीं लगता आपको याद करने में, आपका कोई भी ध्यान नहीं करता. Please do something about it, महाराज, or else you will completely be forgotten. आप इसके बारे में कुछ करिए महाराज, अन्यथा लोग आपको बिल्कुल भूल जाएंगे. Believe me, your very position as the Lord of the universe is at stake. मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो बड़ी खतरे में है. Lord Vishnu smiled. Lord Vishnu जो है वो स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे. He could gauge Narad's thoughts and understood what lay behind his words. वो पढ़ सकते थे कि क्या बोलते हैं नारद जी के दिमाग में क्या चल रहा है. गॉज यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है. गॉज का माने होता है अ स्पेस टू मेजर क्वांटिटी और क्वालिटी. वो मेजर कर पा रहे थे कि नारद जी के मन में क्या चल रहा है. He knew that Narad spoke in that vein because he thought himself to be the greatest devotee of the Lord. उन्होंने कहा कि नारद जी ऐसा इसलिए सोचते हैं कि वो उनको लगता है कि वो सबसे बड़े डिवोटी हैं लॉर्ड विष्णु के. In other words, Narad was proud and pride is akin to poison. In other words, मतलब अगर हम कहें तो नारद जी को जो है वो प्राउड आ गया था, बहुत ही ज्यादा उनको घमंड आ गया था कि मैं बहुत बड़ा क्या बोलते हैं भक्त हूँ भगवान विष्णु का. लेकिन एक जो प्राउड होता है वो एक पॉइजन मतलब जहर के समान होता है. The Lord wished to cleanse Narad's heart of pride. लॉर्ड की इच्छा जादी भगवान विष्णु ने ऐसा सोचा कि हम इनके इस घमंड को तोड़ के रहेंगे. He said, Narad, you chant my name all the time. When people hear you, aren't they inspired to do the same? उन्होंने कहा तुम मेरा नाम हमेशा लेते हो, लेकिन जब तुम मेरा नाम लेते हो तो क्या तुमको देख के लोगों को प्रेरणा नहीं जागती कि वो भी मेरा नाम ले.
द लॉर्ड्स वर्ड्स ओनली सर्व टू ब्लो अप नारद ईगो। लॉर्ड के जो वर्ड्स थे विष्णु जी के, उन्होंने नारद जी का ईगो थोड़ा कम कर दिया, तोड़ दिया। ओ लॉर्ड, ही सेड, द पाथ ऑफ डिवोशन इज फार फ्रॉम इजी। उन्होंने कहा कि पाथ ऑफ डिवोशन जो है वो बहुत मुश्किल है। जो हम लोग डिवोशन करते हैं, भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं, वो काफी काम बड़ा उसको कर पाना मुश्किल होता है। इट इज ट्रू दैट आई स्पेंड ऑल माई डेज एंड ऑल माई नाइट्स चांटिंग योर नेम एंड सिंगिंग ऑफ योर ग्लोरी। मैं दिन रात आपके बारे में सोचता हूं और आप ही का नाम जपता रहता हूं। बट इट्स एन इम्पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू डू दैट। लेकिन ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए ऐसा कर पाना असंभव सा है। लॉर्ड विष्णु वॉज नाउ सर्टेन दैट नारद ईगो हैड सोर्ड स्काई हाई एंड मस्ट बी क्लिप्ड। अब भगवान विष्णु को ये समझ में आने लगा था कि नारद जो ईगो है सोरिंग स्काई हाई, इज वेरी हाई एंड इट्स नीड टू बी रिमूव्ड। He said, "How right you are." He said, "How right you are." नारद, indeed, few can equal you in devotion. बहुत ही कम लोग हैं जो तुम्हें आपके डिवोशन को कर सकते हैं। But you must go to the village of सालग्राम। उन्होंने कहा कि तुम्हें सालग्राम जाना चाहिए। धरती पे एक गांव है सालग्राम, वहां जाके देखना चाहिए। एक भक्त है मेरा वहां पे जो तुमसे भी बड़ा भक्त है मेरा, और उसका नाम है गोविंदा। Perhaps you will learn from him something more about devotion. तुम उससे कुछ सीख सकोगे more about devotion की devotion क्या होता है। नारद was not prepared for this. नारद जी जो थे इसके लिए बिल्कुल भी prepared नहीं थे। How could anyone least of all a peasant teach him anything about devotion that he didn't already knew? उन्होंने सोचा कैसे एक किसान मुझे डिवोशन के बारे में सिखाएगा, जबकि मैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान विष्णु का। तो क्या एक किसान मुझे भक्ति के बारे में कुछ और सिखा सकता है कि वो मुझसे बड़ा भक्त है भगवान विष्णु का। उसके बाद फिर भी वो जाते हैं उसको देखने के लिए। बट ही मस्ट मीट द मैन एंड फाइंड आउट फॉर हिमसेल्फ। लेकिन वो जाते हैं धरती पे सालग्राम नाम के गांव में और देखते हैं कि कैसे एक धरती पे रहने वाला शख्स मुझसे बड़ा भक्त हो सकता है। तो वो जाते हैं और देखते हैं। ही लोकेटेड द विलेज, वो विलेज जाते हैं एंड स्पॉटेड द प्लेस वेयर गोविंदा लिव्ड, और उस जगह को देख लेते हैं जहां पे गोविंदा निवास करता है, रहता है। इट वॉज अ मड एंड थैच हट। एक मड की और थैच की मतलब झोपड़पट्टी में वो रहता था, जो मिट्टी का घर बना हुआ है और उस पर थैच लगी हुई थी, उसमें वो गरीब आदमी रहता था। एंड पुअर मैन्स ड्वेलिंग, वो उस गरीब आदमी का घर था। नारद हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री एंड बिगन टू कीप वॉच ऑन गोविंदा। नारद जी ने अपने आप को एक ट्री के आसपास में छुपा लिया और लगातार गोविंदा को देखते रहते थे कि कैसे गोविंदा नारद विष्णु जी का नाम लेता है। डे डॉन मतलब डे की शुरुआत हुई। उन्होंने देखा कि ये बंदा उठा गोविंदा और उसने फोटो के सामने जाके भगवान विष्णु का 3 बार नाम लिया। मुंह हाथ उसने धोए और उसके बाद 3 बार नाम लिया, नारायण नारायण नारायण, एंड बॉड वेरी लो, और अपना सर श्रद्धा से झुकाया। Then he picked up his plow out and on his shoulder and walked to his fields. उसके बाद वो अपनी प्लो उठा के, जिससे वो खेती बाड़ी करते थे, वो रख के गए और खेती बाड़ी करना उन्होंने शुरू कर दिया। All day long he worked hard on his land. पूरे दिन उन्होंने खेतों में काम किया और बड़ी मेहनत करी। उसके बाद at dusk he came back. फिर जब शाम हुई तो वो अपने घर वापस आए। He had a bath and once again stood before the Lord's picture with folded hands. शाम को आके वो फिर से उन्होंने नहाया धोया और उसके बाद फिर उनकी फोटो के सामने आके नारायण 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 करके 3 बार भगवान विष्णु का नाम लिया और सर झुकाया। He said thrice and again bowed very low. Then he said his evening meal, lay down on the floor and went to sleep. उसके बाद उन्होंने अपना शाम का खाना खाया और फिर से वो जाके सो गए। ठीक है। नारद came away, फिर से नारद जी वापस वैकुंठ में आए। He was thoroughly perplexed, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। How could this peasant Govinda be a greater devotee than himself? उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये डिवोटी मुझसे बड़ा डिवोटी कैसे बन रहा है। ये तो केवल 3 बार नाम लेता है भगवान के, 3 बार सुबह लेता है और 3 बार शाम को लेता है। मैं तो पूरे दिन नाम लेता रहता हूँ इनके, तो ये मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। वो भगवान विष्णु के पास आए वैकुंठ में। लॉर्ड विष्णु ने उनको देखा और उन्होंने पूछा, क्या तुम गोविंदा से मिले? तो उसके बाद नारद जी ने रिप्लाई किया, हाँ मैं मिला। बट मुझे ये बताइए विष्णु जी कि आप मुझसे क्या मजाक कर रहे थे उस समय,
आपने जब पूछा था तो आप मजाक कर रहे थे मुझसे। तो कैसे उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा था? वो कहने लगे कि आपने मुझसे कहा कि केवल वो जो भक्त है वो आपका नाम लेता है, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो केवल 3 ही बार तो आपका नाम लेता था। 3 बार सुबह आपका नाम लेता था, 3 बार शाम को आपका नाम लेता था, जबकि मैं जो हूं वह दिन रात आपका नाम जपता रहता हूं। तो वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो गया वो आपका? वो तो केवल 3 बार नाम लेता है, 3 बार शाम को, 3 बार सुबह नाम लेता है। उसके बाद विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद, देयर इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू डू फॉर मी। थोड़ा सा कुछ ऐसा है जो तुम मेरे लिए करो। उन्होंने क्या पूछा? क्या? अब उन्होंने कहा कि एक बाउल लेके आओ और बाउल में थोड़ा सा तेल रखो और तेल जो है वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, और जाके 3 बार चक्कर लगाओ तीनों लोगों के। उन्होंने उसके बाद फिर ऐसे ही किया, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस बाउल में से एक भी बूंद तेल की गिरे ना। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो 3 बार चक्कर लगा के आए पूरी तीनों लोगों के, और उन्होंने ध्यान दिया कि एक भी बूंद तेल की नीचे ना गिरे। तो जब वो लौट के आए तो भगवान विष्णु जी ने उनसे पूछा कि तुम ये बताओ कि जब तुमने 3 बार चक्कर लगाया लोगों का, तो तुमने कितने बार मुझको याद किया था? तो नारद जी बोले, नारद जी सेड दैट नॉट इवन वंस, एक बार भी मैंने आपको याद नहीं किया। तो भगवान विष्णु ने कहा, तो तुम मेरे सच्चे भक्त कैसे हुए? जब तुमने मुझको एक बार भी याद नहीं किया तो तुम मेरे सच्चे भक्त कैसे हुए? वैसे ही वो पीजेंट जो है गोविंदा, वो भी मेरा नाम याद करता है, 3 बार सुबह लेता है और 3 बार शाम को याद करता है। जब तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन उस ऑयल पे था, उस कटोरी में था जिसपे एक भी तेल की बूंद नीचे ना गिरती, वैसे ही वो भी दिन भर खेतों में काम करता है और उसका सारा ध्यान जो है वो उस खेतों में रहता है कि एक भी, मतलब क्योंकि उसको एक परिवार पालना है, अपने बच्चे पालने हैं, घर की जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए वैसे ही वो भी है। आखिर में नारद जी को समझ में आ गया कि वो एक अच्छा भक्त और वो ही एक बहुत बढ़िया भक्त उनका है। यही इस चैप्टर में दिया हुआ है, और नारद जी को एहसास हो गया और उन्होंने अपना सर विष्णु जी के सामने झुकाया। ठीक है, आखिरी में उन्होंने शक्ति को देखा, माना उनकी। यही इस चैप्टर में दिया हुआ है और यही हमने आज बताना था। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं और एक्सरसाइजेज आपको करनी है। एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।